महादेव 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 महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णं वन्दे पृथासुतम् शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम। बोल हरि बोल हरि 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 बोल
केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, लीला पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, भाव भावेश्वर महादेव। भगवती पीताम्बरा मात, विद्यानंदेश्वर महाराज, पवनसुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये। हरि बोल, हरि बोल। ચાલો નારાયણ, લઈ ચાલો તમારા મનીરામ બાબાને મારી સાથે. શ્રીમદ ભાગવતારણવમાં અવગાહન કરવા માટે. અવગાહન એટલે ગોતો લગાડવા માટે, ડૂબકી મારવા માટે. અને જ્યારે કોઈ ડૂબકી મારતો હોય છે ને તો ડૂબકી અહીંયા મારીને નીકળે. એવી જ રીતે હું બી આ ભાગવતમાં ડૂબકી મારવાનો છું ને તમને બી મરાવવાનો છું. જન્માંતરી ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લવેત. જીવોના જન્માંતરીય પુણ્યો એકત્ર થાય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતી કથા શ્રવણ કરવાનું સૌભાગ્ય મળતું હોય છે. નસીબદાર છો તમે બધા જ જે વિદ્યાનંદેશ્વર મહાદેવના પ્રાંગણમાં શ્રીમદ ભાગવતી કથા એ પણ પોતાના સદગુરુના મુખેથી એક યતિ પરમહંસ સંન્યાસીના મુખેથી સાંભળવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. બહુ મોટી વાત છે તમારા માટે. હું તો ચિંતન કરી જ રહ્યો છું, પણ આ ચિંતનની સાથે તમે પણ મળી ગયા છો એટલે તમારો પણ નસીબ. મહારાજ પરીક્ષિત પ્રાયોપવેશન કરીને બેસી ગયા હતા. ત્યાં બધા જ મહાપુરુષો, મહાત્માઓ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, ચ્યવન, શરદ્વાન, અરિષ્ટનેમિ, અંગિરા, ભારદ્વાજ, મેધાતિથિ, ગૌતમ, પીપલાદ, મૈત્રેય એવા મોટા મોટા ઋષિઓ ત્યાં ભેગા થઈ ગયા હતા. મહારાજ પરીક્ષિત આ બધાને જોઈને એક જ પ્રશ્ન કર્યો. એક તો વ્યક્તિ હોય છે જેને મરવાનું હોય છે, અને એ કોટીમાં આપણે બધા જ છીએ, મરવાના છીએ, અને ક્યાં સ્થાયી રૂપથી રહેવાના છીએ. પરંતુ બીજો એવું હોય છે કે જેની મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ ગઈ હોય છે. પરીક્ષિત બીજી ક્વોલિટીના હતા, બીજી કોટીના હતા. એમની મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ ગઈ હતી. પેલા બ્રાહ્મણ કુમારે આ અભિશાપ આપી દીધું હતું કે આજના 7મા દિવસે તક્ષક નાગ તમને કરડશે. તક્ષક નાગ આપણને સૌને જ કોઈને 7મા દિવસે કરડવા માટે તૈયાર બેસેલો છે. 7મા દિવસે મરી જ જવાના છે. એનો અર્થ એ નહીં કે તમે 7 દિવસ પછી મરી જ જશો.
પણ 7મા દિવસે મરી જશો એટલે આ 7 દિવસોમાંથી જ કોઈ દિવસમાં મૃત્યુ આવવાની છે. અને તક્ષક તો ઘા લગાડીને બેસેલો જ છે. તક્ષક એટલે કાલ. પણ આપણે મરવાનું છે એટલે નિશ્ચિંત છીએ. અરે આજે ક્યાં મરવાના છીએ. હા, એટલે સાંભળી શક્યા તો સાંભળી શક્યા, નહીં તો કઈ વાંધો નહીં. બીજી વાર મહારાજ તો કથા કરવાના જ છે. પરીક્ષિતે એક વાર સાંભળી અને મુક્ત થઈ ગયા. આપણે તો કેટલી વાર સાંભળીએ છીએ અને કરીએ છીએ, તો પણ હજુ સુધી મરતા નથી. અને એમ કોઈ ભાગવતની કથા સાંભળીને તરત જ મરી જતા હોય ને 7મા દિવસે, તો કથા જ નહીં રાખે કોઈ. એ ભાઈ બસ થઈ ગયો. હે, પણ આ મૃત્યુ છે શું, જેનાથી લોકો આટલા ભયભીત બની રહ્યા છે? કાલ તો તમારી સાથે ને સાથે સંકળાયેલો છે. આપણી કથા ક્યારે શરૂ થઈ? 18 તારીખ. આજે કેટલામી છે? 21. કેટલા દિવસ થઈ ગયા? આ 4 દિવસ મરી ગયા કે નહીં? ગયા ને? આવશે પાછા? તો કાલ તો સાથેની સાથે જ છે. અરે હમણાં પણ તમે જુઓ ને, હું આવ્યો હતો ત્યારે 11:01 થઈ હતી, અને હમણાં 11:20 થઈ ગઈ. આ 9 મિનિટ 10 મિનિટ જેટલી બી થઈ ગયો કે 19 મિનિટ થઈ ગયો, આ કાળ આપણે સાથે ને સાથે ખાઈ ગયો કે નહીં? તક્ષક તો પાછે પડેલું જ છે. કાળથી બચવાનો કોઈ ઉપાય છે જ नहीं. इसका तो मुकाबला करना पड़ेगा भाई. सामने कोई आ गया और तुम्हारे साथ झगड़ा करे, तुम चुपचाप बैठे रहोगे क्या? बैठ भी सकते हो, महात्मा हो, सहनशील हो तो, लेकिन कितनी बार तुलसीदास जी महाराज को भी लिखना पड़ा, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई. बहुत ज़्यादा अगर तुम रगड़ोगे तो जो शीतलता का स्वभाव वाला चंदन है उसमें से भी आग निकलेगी. घर्षण करोगे तो आग निकलेगी. क्या સુધી બેસી રહેશો? કાલ આવ્યો છે, આવવા દો. સાથે જ ચાલી રહ્યો છે, ચાલવા દો. કારણ કે તમારા રોકવાથી રોકાવાનો નથી. તો સ્વીકારી લો કે અમારી સાથે જ છે. અને જ્યારે તમે સ્વીકારી લેશો અને સાથે જ છે એ અનુભવ થઈ જશે ને, તો તમને ડર નહીં લાગશે. પછી તમે પરિપક્વ થતા જશો, પરિપક્વ થતા જશો. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुमको ये सिखाऊं कि तुम सोचो इस बात को कि दिन में एक बार भी कम से कम सोचो कि मृत्यु हमारे साथ है. मृत्यु हमारे साथ है. और मृत्यु का स्मरण रहेगा ना बच्चों, तो अपने आप हरि स्मरण होगा. કારણ કે કોઈ મરવા માંગતો નથી, એટલે પ્રભુનું સ્મરણ કરશે કે મારી રક્ષા કરો. તો કાલ બધાની સાથે સંકળાયેલું જ છે, તક્ષક બધાની સાથે સંકળાયેલું જ છે, અને 7 જ દિવસમાં આવવાનું છે એ બી નક્કી જ છે.
વિદ્વાન મહાપુરુષો આવેલા છે, ઋષિઓ આવેલા છે. પ્રશ્ન કર્યું, સર્વથા મ્રિયમાણ વ્યક્તિ અને સમુપેત મૃત્યુવાન વ્યક્તિ, એમના માટે કયું કર્તવ્ય છે? સમુપેત મૃત્યુનો અર્થ થઈ ગયો મૃત્યુ મળવાની છે, અને મ્રિયમાણનો અર્થ થઈ ગયો બસ હવે અભિશાપ મળી ચૂક્યો છે એટલે મરવાનું કાલ નિશ્ચિત થઈ ગયો છે, સમય નિશ્ચિત થઈ ગયો છે. તો મારા માટે કર્તવ્યતા શું? બધા ઋષિઓએ કાંઈ જવાબ આપ્યું નથી. એકબીજાના મોઢા જોવા લાગ્યા. એ ભણેલા નહોતા? નહીં. એ બધા જ ઋષિઓ મંત્રદ્રષ્ટા છે. એ બધા જ ઋષિઓ એક એક દર્શન શાસ્ત્રના પ્રણેતા છે, રચયિતા છે. ન્યાય માટે કીધું તો ગૌતમ આવેલા છે, કણાદ આવ્યા છે, એ નવ્ય ન્યાયના છે. જૈમિની આવેલા છે, એ મીમાંસાના છે. જેટલા બી આપણા દર્શનો છે એ દર્શનોના રચયિતા મહાત્માઓ અહીંયા બેસેલા છે, પરંતુ કોઈ બોલતો નથી. બધામાં જ મતભેદ થઈ રહ્યા છે કે હા મારો સિદ્ધાંત કરશે તો એમ થશે ને મારો સિદ્ધાંત કરશે તો એમ થશે, પણ મારા સિદ્ધાંતથી જ આ મુક્ત થશે એવું કોઈ જોર લગાડીને બોલતો નથી. એટલામાં જ ત્યાં પહોંચી જાય છે. તત્રાભવદ ભગવાન વ્યાસપુત્રો યદ્રિચ્છયા મઠમાનો નપેક્ષઃ અલક્ષ્યલિંગો નિજલાભતુષ્ટો વૃતસ્ય બાલૈરવધૂતવેશ. બોલે સુખદેવ ભગવાન કી. આપણા કથાના વક્તા આવી ગયા. तत्र तस्मिन स्थले, उस स्थान पर जहाँ सब बैठे हुए थे, भगवान एव परमात्मा ही व्यास पुत्रो अभवत, व्यास के पुत्र के रूप में खड़े हो गए. यानी ये जो सुखदेव है, इसलिए मैं जयकारा बुलवाता हूँ तो बोलता हूँ सुखदेव भगवान की. એ ભગવાન જ છે, સાક્ષાત ભગવાન જ અહીંયા વ્યાસપુત્ર થઈને બનીને આવી ગયા છે. પોતાની ઈચ્છાથી પરિભ્રમણ કરતા કરતા, નિરપેક્ષ ભાવથી રહેતા, જેમને લોકો ઓળખી જ ન શકે એવી સ્થિતિમાં રહેતા. એટલે છોકરાઓ પાછળ આવી ગયા, ઘણા બધા છોકરાઓ ભેગા થઈ ગયા અને પાગલ જા રહા है, पागल जा रहा है ऐसा बोलने लग गए, क्योंकि अवधूत थे. છોકરાઓને લાગ્યું कि कोई पागल है, अलक्ष्य लिंग है, कोई पहचान सकता नहीं. बच्चों, महात्माओं की क्रियाओं को देख करके ऐसा मत समझ लेना कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही ये भी कर रहे हैं. तो हमारा मान एमनामा सो फिर ये भी भावना नहीं लावता. મલમૂત્રાદિકોનું વિસર્જન તમે બી કરો છો, મહાત્મા બી કરે છે. સવારે ઉઠીને દંત ધાવન એટલે કે દાંતું બ્રશ તમે બી કરો છો, મહાત્મા બી કરે છે. તમે બી ઊંઘો છો, મહાત્મા બી ઊંઘે છે. તમે બી જમો છો, મહાત્મા બી.
એટલે ઘણા બધા લોકોની ભાવના દુર્ભાવનાના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે કે અરે અમે જેમ કરીએ તેમ જ કરીએ, પછી એનામાં ને અમારામાં ફેર શું છે? મારે બોલવાનું ઘણું છે આજે, એટલે વધારે કંઈ વ્યાખ્યાન એનું નથી કરતો, પણ તમને સંકેત કરું છું. ક્યારેય ગુરુજનોમાં દેહ દૃષ્ટિ ન રાખતા અને दोष दृष्टि नहीं करता. महात्मा की जो मनोदशा होती है ना बच्चों, वो तुम्हारी मनोदशा से बहुत ऊपर होती है. भले व्यवहार दशा में तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार कर रहे हो, आओ बैठो भाई क्या लोगे, आशीर्वाद, ये क्रियाएं होती रहती है, लेकिन वास्तविकता उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो कहीं और होता है. दो संत बहुत ही अच्छे थे, गंगा तट के ऊपर बैठे हुए थे. ख्याति अपने आप होने लगती है. कस्तूरी की सुगंध को फैलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप फैलती है. વાતો થવા લાગી, બહુ સારા સંતો આવ્યા છે, મોટા સંતો આવ્યા છે, એટલે લોકો દર્શન કરવા જવા લાગ્યા. વાત વાતમાં વાત રાજા સુધી પહોંચી. कोई महात्मा आया है. राजा के वजीर ने कहा चालो तमें भी दर्शन करवा, बहुत सारा संतो आया है. राजा सवारी के ऊपर, हाथी के ऊपर चढ़ करके और दर्शन करने के लिए आ रहा था. लेकिन कुछ दूर हाथी के ऊपर बैठा था, फिर उतर गया नीचे. संतों के पास पहुंचा. संतों ने, दोनों संतों ने एक दूसरे की आंख में आंख डाल करके और कुछ सोच लिया. और एक रोटी पड़ी हुई थी, उसको पकड़ के दोनों खींचने लगे. तुम नहीं खाओगे, मैं खाऊंगा. दूसरा बोलता है नहीं मैं खाऊंगा, तुम नहीं खाओगे. वो एक रोटी के लिए दोनों झगड़ने लगे, खींचा खांची करने लगे, खींचने लगे. राजा सामने आ गया था. तो मन જ મનમાં વિચાર કરે છે, એ કેવા મહાત્મા એક રોટલી માટે લડે છે, ઝઘડે છે. ચાલો પાછા. એટલે તે મળ્યા વગર, પગે લાગ્યા વગર પાછો થઈ ગયો. થોડીક દૂર ગયો હશે રાજા, બંને મહાત્માઓ ઊભા થઈને તાળી પાડવા લાગ્યા. સારું થઈ ગયું, સારું થઈ ગયું. ગયો નહીં આથી, ગયો નહીં આથી. झंझटपति. राजा ने पीछे मुड़ के देख लिया. अरे अभी तो ये लड़ रहे थे और अब तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब जरूर यहाँ कुछ रहस्य है. वापस आया राजा, प्रणाम किया. और कुछ नहीं कहने के लिए आया हूँ, मैं तो यही कहने के लिए आया हूँ महात्माओं, मेरे आते ही रोटी के लिए झगड़ने लगे थे, मेरे जाते ही ताली पाड़ के हंसने लगे. इसका क्या रहस्य है? महात्माओं ने कहा राजन बुरा मत लगाना, तुम राजसी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति थे, हाथी पे बैठ के आ रहे थे, संतों को मिलने आ रहे थे और अपने अभिमान को भी सुरक्षित किए हुए आ रहे थे. ऐसे अभिमानी से मिलना हमको योग्य नहीं लगा, इसलिए हम झगड़ा करने लगे.
जिससे तुम समझ जाओ कि इन लोगों में कोई दम नहीं है महात्मा, चले जाओ। तो फिर हंसने क्यों लगे ताली बजा करके? इसलिए कि ये राजा होके भी कितना बड़ा मूर्ख है, अभी तक समझ नहीं सका कि महात्माओं की स्थिति क्या होती है, ये कैसे राज्य चलाता होगा। इसलिए हमको हंसी आ गई। मित्रों, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। संतोनी माया वेद न जाने, नानक देव ने लिखा, गुरु नानक जिनका, महात्माओं की जो माया है, लीला है, उसे वेद भी नहीं जान सकता, तो दूसरे की तो बात ही क्या है। इसलिए कह रहा हूं, अलक्ष्य लिंग वो नहीं ओळखा है, नहीं ओळखा है, नहीं पहचानने में है। સ્ત્રીઓ માટે કહેવામાં આવે છે કે આખી જિંદગી પુરુષ રહી લે તો બી નથી ઓળખી શકતો કે, અને દાવો નથી કરી શકતો કે મેં ઓળખી ગયો છું તને. સ્ત્રીની માયા એટલી વિચિત્ર હોય છે દીકરાઓ, ખોટું નહીં લગાડતા હો તમે. તમે કોઈ મહામાયાઓ છો, ઓછા નથી બધા. ओळखी न सके कोई, साथ रह करके नहीं पहचान सकता तो दूर से बैठा बैठा क्या पहचान लेगा। और वो कहे कि मैंने जान लिया, तो वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। वैसे ही संतों के लिए तुम समझो कि हमने पहचान लिया, हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो काई नहीं ओळखी शक्या, તમે काई नहीं ओळखी शक्या। बाल ही अवधूत वेश है, बालकों से गिरे हुए अवधूत वेश में आ रहे हैं सुखदेव। लेकिन जो उस सभा की ओर आए, सारे के सारे ऋषि खड़े हो गए, स्वयं राजा खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे। आ बधु જ્યારે પેલા છોકરાઓ એ જોયું ને, એ તાળી પાડતા પાડતા આવી રહ્યા હતા, ગાંડો ગાંડો કહેતા આવી રહ્યા હતા, એ લોકોએ જોયું તો એકદમ સ્તબ્ધ બની ગયા અને વિચાર કરતા થઈ ગયા, યાર આપણે તો કંઈ બીજું જુદું જ સમજતા હતા, આ તો કંઈ બીજું જ લાગે છે, કોઈ મોટો માણસ લાગે છે, જેમના આવવાથી બધા ઊભા થઈ ગયા। इसलिए मैंने कहा कि समझना बड़ा कठिन होता है, महात्माओं को समझना कठिन होता है। महात्मा आपके साथ में, सदगुरु आपके साथ में सामान्य जीवन जीते हैं, वो उनकी कृपा है, तुम्हें नजदीक लेने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे भगवान सुखदेव, बहुत कुछ लिखा है, मैं नहीं कहूँगा अब ज़्यादा। महाराज परीक्षित ने उठ करके उनका सम्मान किया और जो प्रश्न ऋषियों से किया था वही प्रश्न इनसे भी किया। मेरी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, 7वें दिन मुझे तक्षक आकर के काटेगा, मेरे पास जीवन 7 ही दिन का बचा है। हे महानुभाव, आप आए हैं मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मेरी कर्तव्यता का विधान कीजिए, मारे शू करवू જોઈએ આ સ્થિતિમાં आप મને उपदेश आपो। किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, या इससे कोई और अन्यत उपाय हो तो वो आप हमको बता सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके पास समय का बहुत अभाव है, फिर भी आप मेरे लिए कृपा करके आए हैं। आप एक स्थान के ऊपर एक गाय को दूने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा टिकते नहीं है, रहते नहीं है। फिर भी मेरी जिज्ञासा है, मैं आपकी शरण में आया हूँ,
तब सूत जी महाराज ने कहा, प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। शरणागति रूप धर्म को जानते थे भगवान सुखदेव, क्योंकि भगवान ही है ना, और शरणागति तो भगवान की ली जा सकती है न बच्चों। संसार में शरण्य दो ही लोग होते हैं, याद रखिएगा, एक तो ईश्वर और दूसरा सद्गुरु। इनकी शरणागति अगर तुम ग्रहण करते हो तो असफल नहीं बनोगे, कभी भी असफल नहीं रहोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। એમની जिज्ञासा જોઈને સાંભળીને श्री शुक उवाच, पहली बार बोल रहे हैं सुखदेव। श्रीमद् भागवत में सुखदेव का व्याख्यान द्वितीय स्कंद से शुरू होता है। अब तक प्रथम स्कंद पूरा हो चुका है और द्वितीय स्कंद में आया है श्री शुक उवाच, भगवान सुखदेव बोले। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां। ते प्रश्नः वरीयान्। हे राजन, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम कक्षा का है, श्रेष्ठ है, और उसका कारण है लोकहितम ते कृतः। लोक कल्याणार्थक જ તમે આ પ્રશ્ન મારા સામે કરો છો। નૃપ શબ્દથી પરીક્ષિતને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે। यहाँ લોકહિતમ નૃપ। નૃપ શબ્દનો અર્થ હોય છે નૃન પાતીતિ નૃપ, જે મનુષ્યોનું संरक्षण करे એનું નામ नृप। वही राजा हो सकता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। आत्मवेत्ताओं की सभा में आपके इस प्रश्न का बहुत सम्मान होगा, बहुत सम्मान होगा। श्रवण करने के लिए संसार में बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब तक आत्म तत्व को देखने की प्रबल इच्छा, जिज्ञासा, निष्ठा नहीं जागृत होती है जिस जीव में, तब तक कितना ही कोई श्रवण कर ले राजन, उसे लाभ नहीं होता है। તમે અહીંયાથી ઊભા થઈને જશો ને અને લોકો પૂછશે ક્યાંથી આવ્યા, તો સાચું સાચું બોલો। શું કહેશો? કથામાંથી આવ્યા, એમ જ કહેશો। ક્યાંથી આવ્યા? શું કરીને આવ્યા? સાંભળીને આવ્યા। કથા સાંભળીને આવ્યા। મહારાજે શું કહ્યું એ તો મહારાજને જ ખબર। ભાઈ તમે શું કરવા ગયા હતા? कथा सामलवा। उसी के ऊपर टकोर करते हुए कह रहे हैं सुखदेव, अपश्यताम आत्मतत्वम। જે પોતાના આત્મ સ્વરૂપને ઓળખતા નથી યા ઓળખવા માટે પ્રયત્ન કરવા માંગતા નથી, એવા લોકોને કેટલું તમે સંભળાવો તો પણ કોઈ અસર થવાનો નથી। निद्रा के द्वारा रात्रि, भोग भोगने के द्वारा रात्रि अवस्था समाप्त हो रही है और दिन
परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाई करने में जा रहा है। बहुत सारी वस्तुओं को एकत्र कर लिया है, बहुत परिवार भी इकट्ठा हो गया है। इस आत्मसेना के होते हुए भी ये जितना परिवार है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? आत्मसेना। अपने द्वारा बनाई हुई सेना है ना। एक हमारे मिलिट्री के रिटायर व्यक्ति थे, वो कहा करते थे अगर हमारे बाप दादा मरते नहीं तो सेना हमारी होती, कमांडर हम ही होते, पूरी फौज हो जाती न तब तक। तो वर्तमान में भी तो तुमने अपनी आत्मसेना इकट्ठी कर रखी है। इसमें देख रहे हो कोई बीमार पड़ रहा है, कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है, दवाखानाમાં ભરતી થાય છે, કોઈ ગોવિંદાય નમો નમઃ પણ થઈ જાય છે। આ બધું નજરે જોઈ રહ્યા છો, છતાં પણ કાંઈ અહીંયા ચોટ लागती નથી। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। प्रिय व्यक्ति का वियोग, अप्रिय व्यक्ति का संयोग न चाहते हुए भी होता है और सामने हो रहा है, फिर भी कभी तुम सावधान नहीं होते हो, क्योंकि तुम प्रमत्त हो, प्रमादी हो गए हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। इसलिए हे राजन, यहाँ परीक्षित के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया है। तस्मात् भारत, हे भारत यानी हे परीक्षित। भारत क्यों कह रहे हैं? भा नाम है ज्ञान का, रत नाम है उसमें लगे रहने का, प्राप्ति के लिए। तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए निरत प्रयत्नशील हो, इसलिए तुम भारत हो। देखो हम सभी लोग भारतवासी हैं, अपने सब भारतीय हैं या लोग ज्ञान मार्ग के उपासक हैं। भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए। श्रवण भागवत के द्वारा कर रहे थे, कीर्तन अभी ईश्वर भाई करवा ही रहे थे। स्मरण आप हमेशा सुन करके, कीर्तन करके और कर सकते हैं परमात्मा का। अभय की प्राप्ति करने के लिए ये तीन चीजें बहुत आवश्यक है। अगर तुम निर्भय होना चाहते हो, मृत्यु के भय से डरना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो मित्रों फिर श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन साधन संसार के लोगों के लिए बहुत उत्तम माने गए हैं, बहुत उत्तम माने गए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ है पुरम परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। यही सांख्य का फल है, यही योग का फल है। और अपने स्वधर्म में निष्ठा रखते हुए जीवन जीने का फल है। और यही मनुष्य जन्म धारण करने का फल है। अन्ते नारायण स्मृति ही। जब अंतिम काल आए, जब मृत्यु का समय आए, उस समय नारायण स्मृति ही।
भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। इसलिए अभ्यास करते ही रहो, नारायण नारायण नारायण, महादेव 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 महादेव, राम 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 राम। अगर ये अभ्यास बना रहेगा तो जिस क्षण मृत्यु आएगी उस क्षण भी आपके मुंह से यही निकलेगा, तो आपका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। मेरी निष्ठा तो निर्गुण ब्रह्म में है, लेकिन फिर भी वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए मैं सगुण भाव में स्थित होकर के और भगवत कथा किया करता हूँ। निष्ठा किस में है? निर्गुण ब्रह्म में है। सुखदेव जी महाराज हमेशा निर्गुण ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, लेकिन भगवान के गीत इसलिए गाया करते हैं कि वैष्णवों को अच्छा लगता है, भक्तों को अच्छा लगता है। 18 तारीख के पहले सब लोग यहाँ के बैठते थे क्या इतने? नहीं नहीं। और जब भागवत शुरू हो गई तो आ गए ना। किसके कारण आ गए? भागवत के कारण आ गए, क्योंकि भागवत भगवान के गुणों का गान है, और जहाँ जहाँ भी भगवान के गुणों का गान होगा वहाँ के ऊपर शांति, संतोष, आनंद, इसकी अनुभूति होगी ही होगी। और संसार में जीव तो दुखी है, दुखियों की कोई कमी है क्या? जिसको देखो वो रड़ता ही रड़ता मिलेगा, हंसता तो कोई कोई मिलेगा। मैंने मेरे पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। हे राजन, आपको भी मैं वही सुनाऊंगा, और आप चिंता न करें, आपकी मुक्ति हो जाएगी। एक मुहूर्त में, एक क्षण मात्र में महाराज खटवांग ब्रह्मवेत्ता हो गए, उनकी मुक्ति हो गई। आपके पास तो अभी 7 दिन बहुत है। ये बड़ा आश्वासन है, बड़ा आश्वासन है। और वो भी किसके द्वारा दिया जा रहा है? भगवान सुखदेव के द्वारा। और सुखदेव तो बिल्कुल विरक्त है, उनको कोई राजा से माल मिलेगा ऐसी तो उनकी अपेक्षा ही नहीं है। लंगोट तक तो लगा के नहीं बैठा है, तो कपड़ा भी नहीं पहनता तो क्या कपड़ा मांगेगा, है ना? मतलब विरक्ति की पराकाष्ठा है सुखदेव, वैराग्य की पराकाष्ठा है सुखदेव। इसलिए वैराग्यवान अधिकारी पुरुष ही श्रीमद् भागवत के वक्ता होते हैं, तो हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को विराट पुरुष की धारणा बतलाई और उसी का ध्यान, जिसके द्वारा सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का विधान किया। विराट पुरुष की उपासना का मतलब होता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम चर अचर जड़ चेतन, विश्व में जो कुछ भी है सिया राममय। वो प्रकृति और पुरुष प्रधान है, माया और ब्रह्म का ही परिणाम है। घड़ा बना मिट्टी से, तो घड़े में ऊपर से नीचे तक क्या रहेगी? मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी को निकाल दो तो घड़ा रहेगा क्या? कपड़े में तंतु ही तंतु हैं, क्या बोलते हैं? धागा, तातनो तातनो। कपड़े में कौन है? तातना।
तातना को निकाल दो तो आंतड़ा हो जाए ना, पति जाए, कपड़े का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले विराट पुरुष की उपासना का वर्णन किया। आप हर वस्तु के अंदर भगवत दर्शन करना शुरू कीजिए, और ये भगवत दर्शन करना शुरू कर देंगे तो राग द्वेष की निवृत्ति, क्योंकि भगवान से द्वेष तो कर ही नहीं सकता कोई, और करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, जैसे अभी अमेरिका में हुआ, कैलिफोर्निया में आग लगी, लॉस एंजलिस में आग लगी। उसके पहले किसी हीरोइन ने, कोई बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें स्टेटमेंट दे दिया कि भगवान क्या है, भगवान क्या है, हम ही सब लोग करने वाले, भगवान क्या करने वाला है। वो स्टेज से उतर के घर भी नहीं पहुंची थी तब तक तो घर जल करके राख हो गया। और इतना ही नहीं, 45,000 एकड़, एक कमला हैरिसन जो राष्ट्रपति थी और उम्मीदवार थी पहले उपराष्ट्रपति, उसका भी घर जल गया। कभी भी बेटा भगवदीय सत्ता को चैलेंज करना चाहिए नहीं। आप आपस में लड़ाई करते हैं तब भी देखो क्या बोल देते हो पता है, तू हूँ समझे, हाँ मने तू શું સમજે છે, એ બોલવાનો અર્થ શું, मतलब શું, तुम मुझे क्या समझते हो, ऐसा बोलते हैं ना। फिर बहुत गुस्सा होता है ना, इसलिए बोल देता है जानते नहीं हो मैं भी कुछ हूँ, मैं भी। फिर सत्य बोल दिया, पहले तो क्या बोला, क्या समझते हो मुझे, फिर वो क्या बोलता है, मैं भी कुछ हूँ। तो तुम्हारी सत्ता है क्या। अरे समुद्र की एक बूंद, और वो बूंद जाकर के समुद्र से टकराए और कहे क्या समझता है समुद्र मेरे को, तो देख मैं भी कुछ हूँ, क्या परिणाम निकलेगा, वही आग लगेगी। हमारे यहाँ की संस्कृति बच्चों आप लोगों को हमेशा ये सिखाती है, और वेदांत दर्शन तो इसीलिए बहुत आवश्यक है जीवन में, क्योंकि वो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की बात करता है। और ब्रह्म दर्शन की बात इसलिए करता है कि जिससे राग द्वेष की कमी हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह भय मत्सरादिकों की कमी हो जाए, निवृत्ति हो जाए, और तुम केवल और केवल चैतन्य का दर्शन करो, ब्रह्म का दर्शन करो, आनंद लो। इसी भाव से ये उपदेश किए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ के ऊपर पहले विराट पुरुष की बात की गई कि जगत जितना भी है, पृथ्वी आकाश पाताल तलातल लोक, इन सभी की सत्ता केवल और केवल मात्र चैतन्य से है, भगवान से है। उनकी धारणा कीजिए। जब भगवत धारणा करते करते आपका चित्त शांत होने लगे, तब सगुण साकार विग्रह भगवान का सामने आए, और एक एक अंग के ऊपर एक एक अंग की धारणा करते करते उसी स्थान के ऊपर टिक जाओ तो वो ध्यान हो जाता है। वो फिर क्या बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा। जैसे ऐसा मान के चलो चरणों का ध्यान किया, धारणा किया, पहले भगवान के चरणों को धारण किया अपने हृदय में, और फिर देखने लगे वहाँ, वही धारणा परिपक्व हो जाएगी, तब ध्यान बन जाएगा, फिर एकाग्रता हो जाएगी। भगवान के मुख कमल को अपने हृदय में बैठा लो, और आंख बंद रखो चाहे खुली रखो, देखते रहो उसको, देखते रहो। वो मुख कमल की धारणा, उनकी मुस्कान,
उनका हंसना तुम्हें इतना आकृष्ट करेगा और एकाग्र बनाएगा कि वही धारणा ध्यान बन जाएगी, वही ध्यान बन जाएगी। धारणा ही मूल में है ध्यान के। और जब ध्येयाकारावृत्ति हो जाती है ना बच्चों, तब धारणा, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी एक हो जाती है। ये त्रिपुटी एक हो जाती है। और जिस क्षण ये त्रिपुटी का आपको अनुभव हो जाएगा एक होने का, उस समय आनंद की पराकाष्ठा होगी। चाहे तो तुम तत्काल भी मुक्त हो सकते हो, चाहे तो ब्रह्म लोकादिकों में यात्रा करते हुए भी मुक्त हो सकते हो। वासुदेवी भगवती भक्ति योगो यतो भवेत तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, भगवान का ही हमेशा हर देश, हर काल, हर वस्तु, हर परिस्थिति में स्मरण करना चाहिए। उन्हीं की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। આ એ છે ને બંને, એ દ્રોણા છે, દ્રોણ દાલ પીવાના. જમું ત્યારે દ્રોણમાં દાલ નાખે, વાટકી, દળિયામાં દાલ નાખીને પીવો ને, તો એમાં એવી શું છે? દળિયા છે. અને આ દળિયામાં ગુરુજી તમને હું રાંધીને આપી રહ્યા છે, તો કથામૃતમ. શું આપી રહ્યા છે? આમાં ભરો, આ કથામૃતમ આમાં ભરો. અને ભરીને કરવાનું શું? પીબંતી, પીવાની શરૂઆત કરો. જેમ જેમ તમે આ કથામૃતનું પાન આ દ્રોણા વડે કરશો, આ દળિયા વડે કરશો, તમારું જે હૃદય છે એ વિષય વિદૂષિત અંતઃકરણ ભગવત કૃપાનું પાત્ર બનતો જશે. જે વિષયોનું ચિંતન કરી રહ્યો હતો એ ભગવાનનું ચિંતન કરવા લાગશે. જે વૈષયિક પદાર્થોનું ચિંતન કરી રહ્યો હતો એ ઐશ્વર્ય પદાર્થ પરમાત્માનું ચિંતન કરવા લાગશે. અને એનું પરિણામ શું આવશે? તો તચ્ચરણ સરોરુહાંતિકમ વ્રજંતી. ભગવાનના ચરણોમાં તમે પહોંચી જશો, ત્યાં બેસી જશો અને ભગવાનનો હાથ તમારા માથા ઉપર આવી જશે. પણ ક્યારે? બોલો ક્યારે? જોરથી બોલો. આ શું? દળિયા. દળિયામાં દાળ ભરો. કઈ દાળ ભરો? તો કથાની દાળ ભરો. હા હા, તમે તો કથા સાંભળીને દાળ ભરવાના જ છો, મને ખબર છે. હા, પણ આ દાળ ભરો જે હું ભરી રહ્યો છું, અથવા ભરવા માંગુ છું તમારા માટે. भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित की परीक्षा लेना चाह रहे हैं, इसलिए कहने लगे, देखो तुमने जो पूछा धारणा ध्यान के विषय में, मैंने तुमको जवाब दिया, किंतु फिर भी तुमको बताता हूँ, तुम राजा हो, मन में कहीं कामना हो सकती है, तो अनेक देवी देवताओं की कामना से तुम अनेक देवी देवताओं की उपासना कर सकते हो. अब ये तो प्रसंग था नहीं, राजा ने बेचारे ने पूछा भी नहीं था परीक्षित ने, फिर भी कह दिया
अगर तुम इंद्र बनना चाहते हो तो इंद्र की उपासना करो, अगर प्रजापति लोक में जाना चाहते हो तो प्रजापति की उपासना करो, अगर सबके ऊपर आधिपत्य करना चाहते हो तो ब्रह्मा की उपासना करो, अगर तुम यशस्वी होना चाहते हो तो कामदेव की उपासना करो, प्रचेताओं की उपासना करो, अगर तुम विद्या प्राप्त करना अब ये बेचारा बुढ़ापे में या मरने के टाइम क्या विद्या प्राप्त करेगा, लेकिन अब बाबा जी को लग गया इसलिए बोल रहे हैं। अगर तुम विद्या चाहते हो तो गिरीशम यजित, भगवान शंकर की उपासना करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों ही पुरुषार्थों को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो यजित पुरुष परम, भगवान नारायण की उपासना करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम, निष्काम होकर के, सर्व काम होकर के, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति, चाहे मोक्ष काम हो करके भी अगर तुम कुछ चाहते हो ये सब, तो फिर तुम्हें यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। सोनक जी महाराज को बड़ा अजीब लगा कि ये सुखदेव जी महाराज क्या बोलने लग गए, इसलिए उन्होंने सूत से कहा कि सूत जी महाराज, ये सुखदेव जी महाराज ने क्या सुनाना शुरू कर दिया। हम लोगों की अपनी ऐसी भावना है, ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है ये केवल और केवल अपने स्वरूप की अनुभूति के लिए हुआ है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीते उत्तम श्लोक वार्तया। बाकी की जितनी भी बातें हैं आयुर्हरति, वो मनुष्य की आयु का हरण कर रही है। मतलब ये सब उपासनाएं, ये सब कामनाएं अगर जीव करता है और उसी में लगा रहता है तो उसमें क्या हो रहा है, आयुर्हरति, अपनी आयु को वो बर्बाद, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। हम ऐसा मानते हैं। भगवान उत्तम श्लोक के दर्शन के अतिरिक्त समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन कानों के द्वारा अगर भगवत कथा का श्रवण न किया गया हो, हे सूत, तो हम मानते हैं ये कान नहीं है, ये तो सांपों के रहने के बिल हो गए हैं, बिल। जिह्वा है और इससे भगवान का नाम नहीं लिया तो मेंढक की टर टर में और जिह्वा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये माथा अगर संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में झुकाया नहीं गया तो केवल माथा शरीर के अंदर बोझा ही बन करके और भार रूप हो जाएगा। इन नेत्रों से अगर भगवत दर्शन नहीं किया, भगवान की प्रतिमाओं का, श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, अच्छे लोगों का दर्शन नहीं किया, तो फिर मोर की पाँख में और आँख में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो हृदय हृदय नहीं जो भगवान की कथा श्रवण करके गदगद नहीं होता हो, नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता हो। जब हमारी ये मान्यता है तो परीक्षित को ये अन्य विभिन्न देवताओं की उपासना बतलाने का कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए। फिर हम आपसे पूछते हैं कि ये सब सुनकर के परीक्षित ने क्या कहा। क्या परीक्षित ने बोला जैसे कि पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की उपासना करना चाहिए, तो क्या उर्वशी की उपासना करने बैठ गया? क्या किया परीक्षित ने? सूत जी महाराज कहते हैं आप लोग ठीक कह रहे हैं। भगवान सुखदेव के इस तरह से कहे जाने पर परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मैं केवल और केवल
भगवान वासुदेव में आत्मभाव किस तरह से सुदृढ़ हो सकता है वही सुनना चाहता हूँ, बाकी और कोई बात नहीं सुनना चाहता। आप केवल और केवल ही निष्पाप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरे हृदय में रहा हुआ अज्ञान रूप जो अंधकार है वो दूर हो जाए। और भी सुनाना चाहते हैं तो आप ये सुनाइए भगवान ने किस तरह से इस सृष्टि की रचना की, फिर इसका पालन किया, फिर इसका संहार कर देते हैं। ये उनकी जो लीला है उस लीला के विषय में आप मुझे कुछ सुनाइए, बाकी मुझे और कुछ सुनने में रस नहीं है। मतलब जो जितनी उपासनाएं बतला दिया था उन सबको खंडित कर दिया कि नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी मित्रों जो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा के लिए हो जाता है ना, उसे लौकिकता अच्छी नहीं लगती है। देखो संसार भी तुम्हें एक क्षण तक अच्छा लगता होगा, एक समय तक अच्छा लगता होगा। जो ही 40 वर्ष की चालीसा पार कर जाओगे न, इसीलिए अपने यहाँ चालीसा का बहुत महत्व है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा बहुत हैं। और ये चालीसा सब ज़्यादा अच्छे कब लगते हैं, जब तुम चालीसा पूरा कर लेते हो। तुम्हारा चालीसा पूरा होने पर ये सारे चालीसे अच्छे लगेंगे, नहीं तो उसके पहले तो आया ये क्या बात है, संसार जो सुख तो कोई मळे ज नहीं, क्यांय नहीं मळे। रच्चा पच्चा रे मां रच्चा पच्चा रे, मारो धणी मारी धणियाणी, मारो दीकरो। અને એ દીકરો गरम गरम सीरा खिलाने की जगह गरम गरम मेथी पाक खिलाए तो क्यों लागसे। सूत ने कहा इस तरह से परीक्षित के द्वारा कहे जाने पर भगवान सुखदेव ने परमात्मा की स्तुति की अपनी तरफ से और उपदेश करते हुए कहा, श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उस परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ जो उत्पत्ति के भी, स्थिति के भी और प्रलय के भी कारण है। जगत को बनाने में भी वही कारण है, बने हुए जगत का पालन करने में भी वही कारण है, और फिर समेट लेने में भी वही कारण। जिस तरह से कोई यात्री ट्रेन में बैठता है तो जाकर के अपनी सीट देखता है पहले, फिर सीट के ऊपर अपना बिस्तरा खोल देता है और उस बिस्तरे के ऊपर जाकर के रात्रि है तो सो जाता है, नहीं तो बैठा बैठा कुछ करता होगा। लेकिन जो स्टेशन आने की तैयारी होती है तो बिस्तरा बांधना कर देता है कि नहीं कर देता है। वही स्थिति है। इस संसार ट्रेन का संचालक जो परमात्मा है वो लाकर के प्लेटफार्म पे जब गाड़ी को खड़ी करता है तब वहाँ के ऊपर सारे जीव आके अपना बिस्तर अपनी अपनी सीटों के ऊपर खोल देते हैं। फिर उनके लिए खाने पीने के लिए वो आ जाते हैं, गर्मा गर्म चाय वाला है, चाय वाला, बटाटा बड़ा वाला है, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा। स्टेशन पे होता है कि नहीं ऐसा बोलने वाला? हाँ, तो रक्षण होने लगता है। और जब स्टेशन आ जाता है तो बिस्तर बांधना शुरू हो जाता है।
तब वो परमात्मा भी सर्ग की स्थिति और उसके बाद में समेटने की बात। गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्तमने। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं इन तीनों कार्यों को करने के लिए जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में अवतार लिया, अपने आप को प्रकट किया। उसी परमात्मा के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि वो मेरी वाणी में आकर के विराजमान हो जाए। तो मैं इस परीक्षित को जो भी उपदेश करूं इसके अंतःकरण में प्रवेश करे। और मैंने जो ये कहा है कि तुम्हें मैं मुक्त करूंगा, एक क्षण में खट्वांग मुक्त हो सकते हैं, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तो मेरी वाणी सत्य सिद्ध हो, यथार्थ सिद्ध हो। इस तरह से नारायण सुखदेव जी महाराज ने स्तुति करते हुए भगवान की प्रार्थना किया और इस सृष्टि का जो क्रम था उस क्रम की उत्पत्ति बतलाई, स्थिति बतलाई और उसके बाद में संहार बतलाया। नारायण इसी स्कंद के अंदर चतुश्लोकी भागवत भी आ जाती है। संक्षेप के अंदर श्रीमद् भागवती कथा का वर्णन किया गया है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च योवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब ये सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ था नारायण, ये उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी महाराज को सौंपा गया था, लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर किसी प्रकार का कोई अभिमान न आ जाए, अपने आप को ही कर्ता मान करके और वह स्वयंभू न समझ बैठे अपने आप को। इसके लिए भगवान नारायण ने ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी महाराज को किया है कि आप सृष्टि का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चिंतन करते हुए करेंगे तो आपको भी व्यामोह नहीं होगा और आपके कार्यों में विघ्न भी नहीं आएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान नारायण, आप जब बनाओ सृष्टि को, रचना करो सृष्टि को, तब ये चिंतन करना अहमेवासमेवाग्रे, यानी मैं स्वयं, जो भगवान नारायण बोल रहे हैं, मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी, घड़ा है तो भी, और घड़ा फूट जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। वैसे ही इस जगत की आप जब उत्पत्ति करेंगे तो ये सोच के चलिएगा कि भगवान नारायण ही इसमें विराजमान है, नारायण ही नारायण है। न सत था और न असत था, सत असत उभय भिन्न, केवल सच्चिदानंद घन आनंद ब्रह्म ही एकमात्र था और वो मैं ही था। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। आकाश के अंदर 2 चंद्रमाओं की तरह से सत्य न होते हुए भी प्रतीत होता है। कहेंगे आकाश में 2 चंद्रमा कहाँ दिखते हैं, तो आँख के ऊपर ऐसी उंगली लगा के देखो। अच्छा, यहाँ तुम मेरे ही को देखो, मैं तुमको 2-2 4-4 दिखाई दूंगा। यहाँ मैं ऐसे उंगली करके देखूंगा तो श्रोता ही श्रोता पीछे तक दिखाई देंगे। है नहीं लेकिन दिखाई देंगे। गुरुजी एक ही है लेकिन अनेक दिखाई देंगे। ये केवल दृष्टि का इस तरह करो।
और देखो एक माता जी आ रही, मेरे को 3-4 दिखाई दे रही है, वो आ रही है वो। आकाश में चंद्रमा एक ही है, लेकिन दृष्टि दोष के कारण से न होते हुए भी 2 दिखाई देता है। अरे परीक्षित, बंद करके बैठा कर, उसको आता ही नहीं, वो पटक रहा है जोर से। ये मोबाइल भी बीमारी है सबसे। शौक सबको है। पहली बहन चूल्हा ऊपर शाक मूकती हसे तो भी હાલો આમાં મીઠું કેટલું નાખું, मोबाइल થી बात करती है। मोबाइल ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। अंदर भी है और बाहर भी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं तुम्हारे शरीर में भी विद्यमान है और शरीर से बाहर भी विद्यमान है। ठीक वैसे ही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है और बाहर भी विराजमान है। अच्छा, भगवान को प्रवेश करने में कोई थोड़ी बांधा आता है, कोई तकलीफ थोड़ी होती है। घड़े में मिट्टी को प्रवेश करने में तकलीफ होती है क्या? बोलो। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी ना बोलती है कि मैं नहीं इसमें जाऊंगी, नहीं नहीं। वैसे ही जब ब्रह्मा संसार को बना रहा था तो भगवान भी उसमें प्रवेश कर गए। और अगर भगवान प्रवेश नहीं करते तो ब्रह्मा का बनाया हुआ जगत जड़ ही रह जाता। चेतन रूप में तो भगवान ही विराजमान है। इस तरह से अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय का अर्थ अनुस्यूत, अनुस्यूत यानी उसमें अंदर घुसे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, रह रहे हैं। और व्यतिरेक का अर्थ उससे बाहर। दोनों ही स्थितियों के अंदर परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान। ऐसी स्थिति को जो सिद्ध कर लेता है, समझ लेता है, और फिर अगर वह जगत का कार्य करता है तो उसको मोह की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है करने वाला भी वो, कराने वाला भी वो, और बनने वाला भी वो। अच्छा, समझ गए ना तुम? है ना गुलाब भाई? समझी गया ना एकदम? हाँ। छता भी छूटे जे બધું સમજી ગયા છે। अंदर भी वही, बाहर भी वही, छता पर छूटतो नहीं। केम? इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया। इस माया से निवृत्त होने के लिए ही ये 10 लक्षणा भागवत का यहाँ के ऊपर विधान हुआ है। नारायण, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण जिसमें होते हैं वही भागवत होता है। और ये जो श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों की है, उसके अंदर ये 10 लक्षण विद्यमान है, भरे हुए हैं। अब तक 2 स्कंद पूर्ण हुए, तीसरे स्कंद से सर्ग नाम का लक्षण प्रारंभ होता है। आगे सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, ऐसे क्रम से ये चलेगा। क्रम बिगड़ेगा जाकर के तो 10वें स्कंद में। हालांकि आचार्य वल्लभ नहीं बिगड़ने देते इस क्रम को, वो कहते हैं नहीं, 10वां स्कंद निरोध है,
एकादश मुक्ति है और द्वादश आश्रय है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानते, श्रीधर स्वामी इस बात को नहीं मानते, अन्यथा आचार्य भी नहीं मानते। वो कहते हैं 11वां स्कंद निरोध स्कंद है, 12वां मुक्ति है, लेकिन 10वां जो स्कंद है वो आश्रय स्कंद है। वो क्या है? आश्रय स्कंद है। और आश्रय का लक्षण किया है यहीं भागवत के 10 लक्षणों में। आभासस्य निरोधस्य यत्र अध्यवशीयते, जहाँ आभास और निरोध दोनों ही एक स्थान के ऊपर आकर के और विराजमान हो जाते हैं, स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। वही आश्रय स्थल परब्रह्म है और परब्रह्म ही 10वें स्कंद के अंदर कहा गया। 10वें दशमो हरि ही, अर्थात वहाँ के ऊपर केवल और केवल मात्र भगवान हरि की ही कथाएं आती है और वे ही आश्रय होकर के विराजमान है 10वें स्कंद में। इस तरह से इन 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवती कथा आप श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए सर्ग की चर्चा कर लेते हैं। सर्ग उसे कहते हैं जहाँ कारण सृष्टि होती है, विसर्ग उसे कहेंगे जहाँ के ऊपर कार्य सृष्टि होगी। इसको ऐसा समझ लो, मिट्टी रूप में सर्ग और घट रूप में विसर्ग। समझ में आई बात? मिट्टी के रूप में सर्ग और घड़ा बन गया तो विसर्ग। यानी जब तक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये रहते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, तब तक ये सर्गात्मक सृष्टि कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? और जब नाम रूप धारण करके यही सृष्टि परिवर्तित और परिवर्धित होकर के सामने आ जाएगी तो विसर्ग बन जाएगी। तब इस तृतीय स्कंद का नाम सर्ग स्कंद माना जाता है। और कथा का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के घर से। यहाँ पर विदुर जी महाराज बड़े निष्पक्ष हैं, भगवान के भक्त हैं और न्याय प्रिय हैं, इसलिए उचित मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं। परीक्षित ने पूछा कि क्यों करके विदुर जी महाराज, जिनका इतना बढ़िया राजमहल था, सब कुछ सुख संपदा थी, छोड़ के और वन में क्यों निकल गए? यहां से कथा का प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र ने विदुर को याद किया। विदुर जी महाराज पहुंच गए वहां पर और बड़ा चिंतित अवस्था में बैठे हुए धृतराष्ट्र ने कहा क्या किया जाए? दुर्योधन मानता नहीं है, पांडवों को एक सुई की नोक बराबर जगह देना चाहता नहीं है। मुझे ये युद्ध दिखाई दे रहा है अनिवार्य रूप से, उचित तो नहीं लगता है। विदुर तुम मुझे सलाह दो, सच्ची सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए? आपने मुझे बुलाया है और पूछा है तो मैं सुना देता हूं आपको। जिस अंग में कैंसर हो जाता है, डॉक्टर उस अंग को काट देता है। जिस अंग में गैंग्रीन हो जाता है, डॉक्टर उस अंग को काट डालता है। आपके इस हस्तिनापुर में भी आपके कुल को इस चांडाल चोकड़ी का कैंसर लग गया है, कैंसर का रोग आ गया। चांडाल चोकड़ी कौन कौन सी थी?
दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी और चौथा कर्ण। ये चारों मिल करके आपके राज्य को कैंसर की बीमारी दे रहे हैं। इसलिए आपको पहले दुर्योधन का त्याग करना पड़ेगा। जब वो कह रहे थे उसी समय दुर्योधन अंदर आ गया और उसने सुन लिया कि मेरे त्याग करने की बात कर रहा है बुढ़ऊ, ये चाचा। तो बड़े जोर से चिल्ला के कहने लगा, अरे इनको धक्का मार के बाहर निकालो, हमारा ही खाते हैं और हमारे ही को खोदते हैं, ये नमक हराम है। ये सुन करके विदुर को बहुत कष्ट इसलिए हुआ कि वो तो बिना बुलाए नहीं आए थे। तो धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए था कि पुत्र तुमको इस तरह से चाचा का अपमान नहीं करना चाहिए था। दुर्योधन के बोलने से अधिक दुख धृतराष्ट्र के मौन का हो गया, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। तब वो कहने लगे दुर्योधन से, तुम्हें मुझे धक्का मार के बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। हूं पोते जो यहाँ थी निकली जाइस, मैं खुद ही चले जाऊंगा। और वे अपने घर आ गए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम, अपने हाथों से अपने धनुष को उठाया और प्रातःकाल होते ही उस धनुष को दुर्योधन के दरवाजे के ऊपर रख करके और वो यात्रा के लिए निकल गए, वन में चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। धनुष दुर्योधन के दरवाजे पे रखा, साथ नहीं ले गए। ये संकेत करके गए कि तुम दुष्ट है, मूर्ख है, तू ये समझ लेगा कि मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। ये धनुष यहाँ रख के जा रहा हूं, इसका मतलब मैं न तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और न पांडवों की ओर से लड़ूंगा। इस तरह से वो वहां रख करके वहां से निकल गए। तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे थे। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, वहीं के ऊपर यमुना जी के तट पर उद्धव जी महाराज का दर्शन हो गया। दोनों एक दूसरे को जानते तो थे ही, उनके अपने स्वजन थे। गले मिलते हैं, आलिंगन करते हैं। गाढ़म कराभ्याम प्रपीड्यत, और फिर एक दूसरे से पूछने लगे, कहो कैसे हो, क्या है। और विदुर जी महाराज ने तो उद्धव जी से भगवान कृष्ण और उनके परिवार के बारे में अनेक सारे प्रश्न कर दिए। भगवान हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, बलराम ठीक है, जिस अनिरुद्ध की गति को कोई रुद्ध नहीं कर सकता था वो अनिरुद्ध ठीक तो है, प्रद्युम्न ठीक तो है। एक एक का नाम ले लेकर के और पूछ रहे थे। ये भाई साहब तो चुपचाप मौन खड़े हैं ऐसे। ऐसी स्थिति देख करके और विदुर ने कहा उद्धव से, मित्र तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ। वार्ताम कीर्तये सखे तीर्थ कीर्ते है, उन तीर्थ कीर्ति भगवान की जो वार्ता है मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो।
भगवान सुखदेव कहते हैं, ये सुनने के पश्चात हे परीक्षित, उद्धव ने कहा, दुर्भगोवत लोकोयम, इस संसार का भाग्य फूट गया है, नसीब फूट गया है। विशेष करके यदुवंशियों का। जिस तरह से समुद्र में रहते हुए चंद्रमा को मछलियों ने नहीं पहचाना, वैसे ही परमात्मा को यदुवंशियों ने अपने कुल में रहते हुए भी नहीं पहचाना। इसलिए कह रहा हूं, यदुवंशियों के नसीब फूट गए। फिर आगे की कथा वो सुनाने लग गए, एक एक करके, और भगवान की लीलाओं का चिंतन होने लगा। वो आए थे संसार में लीला करने के लिए, और उन्होंने अपनी लीला का संवरण कर लिया, संवरण कर लिया। और भगवान धराधाम को छोड़ करके और चले गए हैं। जाते समय मैंने उनसे कहा था, मैं आपके साथ ही चलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं उद्धव, तुम्हारा इस पृथ्वी के ऊपर रहना अभी आवश्यक है, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं नहीं मान रहा था, तो मुझे उद्धव गीता का उपदेश किया। किसका उपदेश किया? उद्धव गीता का। उसे श्रवण करके और मुझे उन्होंने आज्ञा दिया कि तुम बद्रिकाश्रम में जाओ और वहीं के ऊपर निवास करो। गच्छोद्धव बद्रिकाश्रमम, तुम बद्रिकाश्रम जाओ और वहां मेरी साधना करना। विदुर जी ने कहा, आपको उन्होंने क्या उपदेश किया वो मुझे तो सुना दो। भगवान ने जो भी उपदेश किया हो वो आप मुझे तो सुनाओ। तब उद्धव जी महाराज ने कहा, आपके लिए मैत्रेय ऋषि को आज्ञा दी है। वो भी यहाँ थे उस समय जब मुझे उपदेश किया जा रहा था। तब मैत्रेय से कहा है कि विदुर तुम्हारे यहाँ आएंगे, तब तुम उनको मेरी ये जो बात है वो जरूर उनको सुनाना। इसलिए आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम की ओर पधारें और मैं अब बद्रिकाश्रम की ओर जाता हूँ। थोड़ा कीर्तन कर लो। शिव दोनों मित्र प्रातःकाल होते विदा हो गए, एक मैत्रेय ऋषि के आश्रम की ओर, एक बद्रिकाश्रम की ओर। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के आश्रम की ओर गए। गंगा तट के ऊपर उनका आश्रम था, मैत्रेय ऋषि का। द्वारी द्युनद्याः, द्युनद्याः का अर्थ होता है देव नदी। गंगा जी को देव नदी भी कहा जाता है। ऋषभ कुरुणाम, कौरवों में अत्यंत श्रेष्ठ जो विदुर जी महाराज हैं, वो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, पप्रच्छ प्रश्न करते हैं जाकर के। गंगा द्वार हरिद्वार, गंगा द्वार हरद्वार। सन्यासियों से पूछोगे तो बोलेंगे हरद्वार, वैष्णवों से बोलोगे तो पूछेंगे हरिद्वार, वो हरिद्वार बोलेंगे।
एक बार दोनों में झगड़ा हो गया कि हरिद्वार नहीं हरिद्वार, हरिद्वार वालों को बोले नहीं हरिद्वार नहीं हरिद्वार। सन्यासी और बैरागियों में वैष्णव में झगड़ा हो गया। हरिद्वार के पास में रुड़की करके एक जगह जहाँ पहले कोर्ट लगा करता था, और न्यायाधीश जो था वो जज लंदन वाला था, विदेशी था, अंग्रेज था। मुकदमा गया साहब, लड़ाई किस बात की है? बोला हरिद्वार कहा जाए कि हरिद्वार कहा जाए। उसने कहा तर्क दो, हरिद्वार क्यों कहा जाए? बोला हमारे हरि बद्रीनारायण के रूप में ऊपर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ जाने का यही दरवाजा है, यहीं से ऊपर जाया जाता है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार होना चाहिए। सन्यासियों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या तर्क है? बोला हमारे महादेव जी केदारनाथ वहाँ बैठे हैं, इसलिए हरिद्वार होना चाहिए। वो चिंता में पड़ गया जज, ये क्या लफड़ा। और बात दोनों की साची है, एक तरफ हर भी बैठे और दूसरी तरफ हरि भी बैठे हुए हैं। हरिद्वार कहा जाए कि हरिद्वार, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने कह दिया हरिद्वार बोलो। ये भी ठीक ही बोला, मरने के बाद हाडले डाले जाते हैं तो हड्डियों का द्वार। इस लफड़े में भागवत नहीं पड़ता है, इसलिए देखिए यहाँ द्वारी द्यूनद्याः, द्यूनद्या, द्यूनद्या यानी देव नदी गंगा, इसलिए इसका नाम गंगा द्वार है। गंगा पहाड़ों से नीचे ऋषिकेश के आगे आकर के गंगा जी हरिद्वार से समतल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसलिए इसको हमने मान लिया, भागवत में मान लिया गंगा द्वार। क्या मान लिया? गंगा द्वार है। वहीं पर मैत्रेय ऋषि बैठे हुए हैं, अगाध बोधम, जिनका बोध भी अगाध है, अगाध है। सौशल्य गुणाभितृप्त, किसी से भी प्रश्न किया जाए, जिज्ञासा व्यक्त की जाए तो उसमें शालीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, प्रणिपात होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसी भाव से उन्होंने कहा। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, प्रश्न करते हैं विदुर, जीव कर्म तो सुख के लिए करता है, लेकिन प्राप्त तो उसको दुख ही होता है, और फिर भी दुख प्राप्त होने के बावजूद भी उन्हीं कर्मों को वापस करने में लगा रहता है कि मेरे को सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, मिलता तो नहीं है। जैसे तुम्हारा दृष्टांत दे दूं तुम्ही को, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ब्याह कर दिया, अच्छा किया, क्या सोच के किया कि मारो दीकरो सुखी थશે, और साचું साचું बोलो તમે લગ્ન કરીને સુખી થઈ ગયા? હે ઘરડાઓ, તમે સુખી થયા લગ્ન કરીને? પરણીને પ્રાણ નીકળવાની સ્થિતિ નથી આવી ગઈ? હવે તમે દુઃખી છો, ખબર છે તમને કે એનું પરિણામ દુઃખ જ છે, છતાં પણ તમે તમારા દીકરાના લગ્ન કરો છો કે નહીં? કોઈ એક પણ છોકરાને લાવીને મને સોંપ્યા, મને આપ્યા કે આ મારો દીકરો તમે સાચો, ગુરુજી તમારા જેવો બનાવો? બોલો, આપ્યું એક પણ? તમે બી શું કરો છો?
એના લગ્ન નહીં કરતો હોય તો મારા પાસે આવશો, ગુરુજી કાંઈ ઉપાય બતાવો ને એના લગ્ન થઈ જાય. હવે આ ગુરુજી શું ઉપાય બતાવવાનો જે પોતાના લગ્ન કરી નથી બેસેલો છે? એ તમને ક્યાંથી લગ્ન કરવાના ઉપાય બતાવે? એક ભાઈના લગ્ન નહીં થતા હતા. એ ભગવાન રામ પાસે ગયો અને બોમ્બ ભરાડા કરવા લાગ્યો કે મને ધનિયાણી આપો, ધनियाणी आपो. तो वहीं के ऊपर एक महात्मा बैठा हुआ था. अरे गांडा, किससे मांग रहा है? जब इसकी धनियाणी खो गई थी तो हनुमान ने जाके पता लगाया था, हनुमान जी से मांग. तब वो हनुमान जी के पास में गया तो हनुमान जी ने कहा, गांडा, मैं बिना ब्याह किया हूं, तो मेरे से क्या मांगने को है? છતાં પણ લગ્ન તો કરવા જ છે. લગ્ન તો છોકરાને તો પરણાવવું જ છે. પરણી ગયો તું, મને ખબર છે. અને 40 વર્ષ સુધી તને ખૂબ મજા પડશે. પછી તું મારા પાસે આવશે કે ગુરુજી કથા તો બહુ સાંભળી પણ અનુભવ હમણાં થયો. सुखाय कर्माणि करोति लोकः. लोक, संसार सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन प्राप्त सुख की जगह पर दुख ही होता है. फिर छोड़ देना चाहिए. छूटतुं पण નથી, છૂટતો પણ નથી. बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल. बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल. मैत्रेय ऋषिए जवाब आपता कह્યું, હે વિદુર, અનાદિકાલથી ચાલતું આવેલું અવિદ્યાનો જે પ્રવાહ છે એ જ એમાં કારણ છે. અનાદિકાલથી ચાલતું આવેલું અવિદ્યાનો પ્રવાહ, અજ્ઞાનનું પ્રવાહ એ જ એમાં કારણ છે. जो समझने ही नहीं देता है और बार बार उन्हीं कर्मों को करने में प्रेरित करता है जिनसे दुख की प्राप्ति ही होती है. दुख ज મળે છે. એવા જ કર્મોને કરવામાં પ્રવૃત્ત બની જાય છે મનુષ્ય, અવિદ્યાના કારણે. કોના કારણે? અવિદ્યા. આ અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ જ્યાં સુધી જીવને લાગી રહેશે ત્યાં સુધી આવા જ બધા કામો થતા રહેશે. એટલે પ્રભુથી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય. અને તમે મને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો, તમે તો પોતે જાણકાર છો બધી વસ્તુઓના, છતાં પણ પૂછી રહ્યા છો, એનો મતલબ છે કે તમારા મનમાં સંસારની ઉપકાર કરવાની ભાવના છે. અન્યથા તમે તો સાક્ષાત ધર્મના સ્વરૂપ છો. વિદુરજીને કહે છે, તમે તો સાક્ષાત ધર્મના જ સ્વરૂપ છો. મહાત્માના અભિશાપથી તમારી આ સ્થિતિ થઈ કે તમારે વિદુર યોનિમાં આવવું પડ્યું, આ મનુષ્ય જન્મ લઈને આવવું પડ્યું. कुछ चोर थे, चोरी करके और महात्मा के आश्रम में सामान रख दिया. उनका नाम था मांडव्य ऋषि. उनके यहाँ अगर रख दिया,
राजा के लोग पीछे पड़े हुए थे। वो मांडव्य के यहाँ आकर के देखा तो माल वहाँ मिला। अब माल वहाँ मिला तो लगा चोरी ही है। अब ये तो बेचारे महात्मा जी तो अपनी समाधि में बैठे थे। आ गए राजा के लोग और पकड़ के ले गए। उस राजा के राज्य का नियम था कि जो चोरी करेगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जिसे भी फांसी पे चढ़ाया जाता था उस समय राजा स्वयं वहां पर आ जाया करते थे देखने को। तो जब इन्हें फांसी के ऊपर चढ़ाया जा रहा था तब राजा आके देखे, अरे ये तो महात्मा मांडव्य हैं, बहुत बड़ी भूल हुई है। राजा ने साष्टांग प्रणाम करके और क्षमा मांगा। मैंने क्षमा आपो तमें, भूल थी च मारा मानसो थी। और अपने आदमियों को खूब डांटा भी। तमें लोग सारू कर्યું છે, एक महात्मा ने ले आया जो। मांडव्य ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे ही किसी प्रारब्ध कर्म का दोष होगा। मैं जाता हूं यमराज के पास, मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। मांडव्य ऋषि सीधे ही वहां से पहुंच गए धर्मराज की सभा में। बड़े गुस्से में गए थे, इसलिए धर्मराज भी घबरा गए कि मामला लफड़े वाला हुआ है कोई। सुन रही क्यों महाराज, मैं ये पूछने को आया हूं कि मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों चढ़ाया गया। अब तो धर्मराज चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त की ओर, अकाउंटेंट की ओर देखें, भाई जुओ कहीं लफड़ू छे। अब वो सारी चौपड़ी खोल करके और देख रहे हैं, लेकिन कोई लफड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बोला वो लगा के देखो, क्या वो कांच होता है ना, જેમાં કાંઈ દેખાઈ દે વધારે મોટું, એને શું કહેવામાં આવે। હવે જેવી તમે સમજી ગયા ને, મારે તો તમારે સમજાવવાનું કામ છે। चलो वो लगा के देखो, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप लगा के देखो कहीं कुछ निकल जाए। तो बहुत लगा के देखा तो एक काला स्फोट दिखाई दिया। तो थोड़ा चैन में चैन आया जयगुप्त को, चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त को। बोला हाँ मिल गया मिल गया है। तो मांडव्य ने कहा क्या है बोलो। बोला तुमने बाल्यावस्था में एक सूली जैसा, सुई जैसा, या जो कांटा होता है ना बड़ा, बाढ़ का कांटा, वो कांटे से किसी जीव को ऐसे चुभोया था, ऐसे चुभोया था, कांटा सूली से चुभोया था। मेरी उम्र क्या थी उस समय, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका था। बोला नहीं हुआ था। और क्या मेरी उतनी उम्र हो चुकी थी कि जो मैं समझ सकूं कि ये पाप है और ये पुण्य है। बोला नहीं। तो भी तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। धर्मराज मैं तुमको अभिशाप देता हूं। मांडव्य ने धर्मराज से कहा मैं तुमको अभिशाप देता हूं। तब धर्मराज खड़े होकर हाथ जोड़ के कहने लगे आप जरूर से दीजिए अभिशाप, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन एक तो राजा होने का अभिशाप मत दीजिएगा, एक दासी पुत्र होने का अभिशाप मत दीजिएगा, और एक मेरे को चांडाल योनि में जाने का अभिशाप मत दीजिएगा। महात्मा को तो गुस्सा आया हुआ तो बोला जा तीनों ही दिया। जाओ तुमको तीनों ही अभिशाप दे दिया। तब राजा के रूप में ये धर्मराज युधिष्ठिर बन के आए, दासी पुत्र के रूप में विदुर जी महाराज बन के आए, और चांडाल के रूप में एक चांडाल ऋषि थे। जैसे हमारे यहाँ कांगवी में एक चमार भाई थे, वो कोई जाति से चमार नहीं थे, लेकिन नाम उनका
चमार था, चमार भाई। तो वैसे ही ये भी चांडाल नहीं थे, नाम था चांडाल ऋषि। तो ये चांडाल ऋषि के रूप में जन्म लेकर के आ गए। इसलिए यहाँ पर मैत्रेय जानते थे इस घटना को, तो कह रहे हैं तुम तो प्रजा संयमन करने वाले साक्षात यम हो, धर्म हो, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनादि अविद्या के संस्कारों के द्वारा ही जीव जिन कर्मों को करने से दुख प्राप्त होता उन्हीं को बारंबार करता रहता है। समय થઈ ગયો અને આજે હું એકદમ બરોબર ટાઈમથી આવી ગયો હતો। શું વિચાર છે તમારો? ये खबर नहीं कौन चू 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 कुतरे की तरह से कर रहा है देखो। नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, खिवैया ले चल परली पार, खिवैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, नैया ले चल परली पार, खिवैया ले चल परली पार। विनती मेरी मान स्नेही, विनती मेरी मान स्नेही, तन मन है कुर्बान स्नेही, तन मन है कुर्बान स्नेही। कब से आस लिए बैठी हूँ, कब से आस लिए बैठी हूँ, जग को बाध किए बैठी हूँ, जग को बाध किए बैठी हूँ। मैं तेरे संग संग चलूंगी, मैं तेरे संग संग चलूंगी, ले चल मुझको पार, नैया ले चल परली पार, खिवैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण यव गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, नैया ले चल परली पार, खिवैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार, नैया ले चल परली पार, खिवैया ले चल पर
कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। सूझती अब कोई राह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। कोई बची अब आह नहीं है, कोई बची अब आह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार। नैया ले चल परली पार। खिवैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार पार। कन्हैया ले चल परली पार। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है। कहाँ बरस रहा है? कांगवी में। कांगवी में, विद्यानंदेश्वर महादेव में। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है। पत्ता हरस रहा है। पीता पत्ता हरस रहा है। पी पी कह कोई करस रहा है, पी पी कह कोई करस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ो मझधार। नैया ले चल परली पार। खिवैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार। नैया ले चल परली पार। खिवैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार। हरि बोल। हरि बोल। आरार्धिक्यम गुरुयाद। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला।
हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा